Chalo, good evening to all. Let us start with the subject. Our subject is TCS. First of all, write down the syllabus, the name of the chapters. First chapter is Introduction to Finite Automata. Second chapter is Regular Expression and Languages. Chapter number 3 is Grammars. Chapter number 4 is Push Down Automata. That is PDA. Chapter number 5 is Turing Machine. And chapter number 6 is Undecidability. So all of you first write down the syllabus. Chapter 1 is Introduction to Finite Automata. Second is Regular Expressions and Languages. Chapter number 3 is Grammar. Chapter number 4 is Push Down Automata, PDA. Chapter number 5 is Turing Machine. And chapter number 6 is Undecidability. Once you complete, then let me know. Either you can write in the chat box. I think सबका कॉलेज स्टार्ट हो गया है. Yes. Yes sir. Okay. And कॉलेज में कौन सा टॉपिक चालू किया है TCS का? First chapter. First chapter, that is Introduction to Automata, right? सबके कॉलेजेस में? Yes sir. Yes sir. Okay, चलो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा. अब नोटबुक बंद करो एंड हम कंप्लीट देखेंगे कि सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है डिटेल में, राइट? कंप्लीट नोटबुक बंद, ओपन नहीं करने का और इधर देखने का पूरा. इफ यू सी द सिलेबस देन आपको पता चलेगा देयर इज वन वर्ड व्हिच इज कॉमन इन एंटायर सिलेबस ऑफ TCS, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटा, राइट? व्हाट इज बेसिकली ऑटोमेटा इज? Automata is nothing but a machine, correct? And here in TCS we are designing a machine, right? Designing a machine means what? We are designing a mathematical model of a machine. Machine mathematically कैसा काम करता है वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम डिजाइन करेंगे through a concept called as TCS, right? तो अब अपने को पूरे सिलेबस में कौन से मशीन डिटेल्स में पढ़ने हैं, तो चलो सिलेबस का ओवरव्यू देते हैं. फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा, करेक्ट है? तो हम ये चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा. ध्यान दो, इधर अभी कुछ लिखने का नहीं, राइट? फाइनाइट ऑटोमेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, करेक्ट है? फर्स्ट इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा विथ फाइनल स्टेट. फाइनाइट ऑटोमेटा विथ फाइनल स्टेट बट नो आउटपुट. In this category of FSM, in this category of FA, we will be going to study what is called as DFA and NFA. What is DFA? It is deterministic finite automata. What is NFA? Non-deterministic finite automata. Example of this category of FA where a machine has final state but no output. Example is string matching. Example is string matching. Example is pattern matching. Example is string recognizer. Example is face recognizer या face matching.
बताता हूं क्या होता है। सेकेंड कैटेगरी इज योर FA विथ आउटपुट बट नो फाइनल स्टेट, Second category is a finite automata which produces output for the given input sequence, but there is no final state. Under this category, we will be going to study first machine is Moore machine and second machine is a Mealy machine, right? Example of such a type of finite automata are all analog as well as digital family circuit which you studied till now are the finite automata with output but no final state. Example, say amplifier. Example is amplifier. What amplifier does? Amplifier takes input as a sinusoidal signal and produce output as an amplified waveform. So amplifier is a kind of FA which produces output for the given input sequence. So amplifier, even I can say transformer. I can say analog circuit families are the FA with output but no final state, as well as digital circuit family, right? अब पूरा डिटेल में देखेंगे अपने को क्या पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। फाइनाइट ऑटोमेटा, there are two types of FA. First is FA with final state but no output. Second is FA with output but no final state. चलो फर्स्ट कैटेगरी कंसीडर करेंगे। ये ऐसे टाइप के मशीन होते हैं जहां फाइनल स्टेट होता है but it does not produce any output sequence for the given input sequence, like DFA and NFA. मतलब here we are going to design a machine which accept input as a string, say string recognizer, pattern matching, pattern recognizer, face matching. मतलब इस मशीन पे input होता है string and after scanning the entire string, if machine halts, if machine wait at the final state, that means your input is simply accepted. But if machine halts at non-final state, that means your input is simply rejected. So ये ऐसे टाइप के मशीन्स होते हैं जहां आपको सिर्फ दो ही आउटपुट पॉसिबल है, yes your input is accepted, no your input is rejected. करेक्ट है। अगर आपका इनपुट सीक्वेंस चेंज होता है तो यहाँ आउटपुट चेंज नहीं होगा, सिर्फ दो आउटपुट आएंगे, यस योर इनपुट एक्सेप्टेड, नो योर इनपुट इज रिजेक्टेड। करेक्ट है। सेकेंड कैटेगरी है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट बट नो फाइनल स्टेट। हियर वी हैव मूर मशीन एंड मिली मशीन। ये ऐसे टाइप का, ऐसे कैटेगरी का फाइनाइट ऑटोमेटा है जहां मशीन produces output sequence for the given input sequence. अगर आप input sequence change करोगे तो आपका आउटपुट सीक्वेंस अकॉर्डिंगली चेंज होगा। यहाँ कोई भी फाइनल स्टेट का कंसेप्ट नहीं होता। एग्जांपल, सारे एनालॉग एंड सारे डिजिटल फैमिलीज के सर्किट जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जैसे एनालॉग बात करेंगे तो एम्पलीफायर, वो इनपुट लेता है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, आउटपुट देता है एम्पलीफाइड वेवफॉर्म। तो बोलेंगे एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसड्यूसर, फिल्टर्स, सारे एनालॉग वाले ये टाइप में आते हैं। अ मशीन विच हैज आउटपुट बट नो फाइनल स्टेट। डिजिटल फैमिलीज वाले ऑलरेडी आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा। कौन सा? सपोज अ मशीन एक्सेप्ट इनपुट नंबर एज अ बाइनरी नंबर and performs ones complement of that binary number. So ones complement of a binary number is a machine, is a FA which produces output for the given input sequence. मतलब ये टाइप के मशीन पे आप इनपुट क्या दोगे? बाइनरी स्ट्रिंग। आपका आउटपुट क्या आएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट है। यहां तुम्हारा मशीन ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारा इनपुट एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। अगर आप इनपुट स्ट्रिंग चेंज करोगे, करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग भी चेंज होगा। सो वंस कॉम्प्लीमेंट is also a type of this FA. Even two's complement, even binary to gray code converter, gray to binary code converter, BCD to XS3 converter, जो आपने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में पढ़े हैं, सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट ये टाइप के मशीन है जहां आउटपुट सीक्वेंस होता है बट फाइनल स्टेट नहीं होता। इवन
जो आपने सीक्वेंशियल सर्किट्स में पढ़ा, फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, आपने काउंटर पढ़ा, ये सारे इस कैटेगरी के फाइनाइट मशीन्स होते हैं। तो अभी तक हमने दो कैटेगरी देखे। ऐसे मशीन, पहला जिसको फाइनल स्टेट होता है, पूरा इनपुट स्कैन करने के बाद मशीन फाइनल पे आके रुका, योर इनपुट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। सेकंड ऐसा मशीन है जहां आपके इनपुट सीक्वेंस के लिए हम आउटपुट सीक्वेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट चैप्टर में इन डिटेल हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीएफए, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड अभी कॉलेज आपका स्टार्ट होके 1 वीक हो गया है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर सकता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ व्हाट इज बेसिकली डीएफए एंड एनएफए इज। DFA stands for deterministic finite automata, NFA stands for non-deterministic finite automata। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो DFA is deterministic, DFA is fixed। That means in DFA, on each state, on each input symbol, you have exactly one transition। मतलब DFA ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है, ऐसा मशीन है जहां आप एक स्टेट पे खड़े हो, एक इनपुट सिंबल आता है, एग्जैक्टली एक ही ट्रांजिशन मिलेगा क्योंकि वो फिक्स्ड है। NFA is non-deterministic। That means on each state, on each input symbol, we have either 0 or 1 or more transition is possible। तो फर्स्ट चैप्टर में DFA, NFA, मूर मशीन, मिली मशीन, ये ऐसे 4 मशीन डिजाइन पढ़ने वाले हैं अंडर द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इंट्रोडक्शन में बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे हम। टर्मिनोलॉजीज लाइक व्हाट इज अल्फाबेट, हाउ यू डिफाइन अल्फाबेट। generally alphabet is denoted by summation sign। correct है, alphabet is denoted by summation sign। what is basically alphabet? A simple symbol accepted by a machine is called as alphabet। generally, conventionally it is denoted by summation sign। example, आप अल्फाबेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग स्मॉल लेटर A to Z is possible, digit 0 to 9 is possible, as well as all possible special character can be represented as alphabet। अगर मैं बोलूंगा समेशन, अगर मैं बोलूंगा समेशन 0,1, इसको बोलेंगे बाइनरी अल्फाबेट। अगर मैं बोलूंगा समेशन A B C डॉट 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 Z, इसको बोलेंगे लोअर केस अल्फाबेट। करेक्ट है। अल्फाबेट से आप आगे चलोगे तो आएगा नेक्स्ट डेफिनेशन, स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग? any finite combination of alphabet is called as string। any finite combination of alphabet is called as string। example, अगर मैं बोल रहा हूं कि बाइनरी अल्फाबेट समेशन 0 1, अगर मैं एग्जांपल स्ट्रिंग लिखूंगा 1 0 1 1 0, this is nothing but a combination of finite alphabet over summation 0,1। so this is 1 0 1 1 is a string over alphabet summation 0,1। अगर मैं लिखूंगा समेशन अल्फाबेट A, B, दो ही अल्फाबेट है तो उसका स्ट्रिंग बनेगा सपोज ABBA। so ABBA is a string over summation A, B। मतलब ABBA ये जो स्ट्रिंग है which is a combination of two alphabet A and B। ठीक है, तो अल्फाबेट समझा आपको, स्ट्रिंग समझा। नेक्स्ट थर्ड आएगा स्ट्रिंग लेंथ। व्हाट इज स्ट्रिंग लेंथ? इट इज सिंपली the length of the string। it is simply the length of the string। string में टोटल कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स प्रेजेंट है, that is called as string length। जैसे एग्जांपल 1 0 1 1 0, कितने अल्फाबेट है काउंट करो आप, 1 2 3 4 5। so what is the string length of 1 0 1 1 0 is 5, right। जैसे ABBA ये स्ट्रिंग है, कितने अल्फाबेट प्रेजेंट है इसमें, 4, ABBA। तो व्हाट इज स्ट्रिंग लेंथ? इट इज 4। तो ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको इंट्रोडक्शन में पढ़नी है। पहला अल्फाबेट, अल्फाबेट के बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग लेंथ, उसके बाद आएगा लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? अ फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, राइट। सो लैंग्वेज इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग व्हिच हैज सम मीनिंग। एग्जांपल देता हूं, ध्यान दो इधर। एग्जांपल, लैंग्वेज L कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग W। कैसे लिखता हूं वो देखो, कैसे बोलता हूं वो सुनो। लैंग्वेज L consists of string W such that W belongs to
A, B closure. मतलब W is a string which is any combination of A and B. So language L consists of all the string W such that W belongs to A, B closure and W ends with ABB. राइट? अब मुझे बताओ लैंग्वेज एल में कौन से स्ट्रिंग आएंगे? लैंग्वेज एल कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग W such that W belongs to A or B closure and W ends with ABB. तो सिंपल मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या आएगा? ABB. उसके बाद क्या आएगा? AABB. उसके बाद क्या आएगा? BABB. उसके बाद क्या आएगा? ABABB. उसके बाद क्या आएगा? BAABB डॉट 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 डॉट. अब ये सारे स्ट्रिंग में एक कॉमन प्रॉपर्टी है. कौन सी? ये सारे स्ट्रिंग का एंड देखो तो एंड इज ABB. करेक्ट है? तो इसको बोलेंगे अपन लैंग्वेज. अंडरस्टूड? थोड़ा समझ में आ रहा है? यस यस सर. पक्का? सबको कंफर्म? यस सर. थोड़ा थोड़ा. एनी डिफिकल्टी? पूरा आ रहा है? ओके. एनी डिफिकल्टी? योगेश यस गॉट इट. एनी डिफिकल्टी? ठीक है, एक काम करो, ये कॉपी करो. फाइनाइट ऑटोमेटा 2 टाइप एग्जांपल के साथ. फर्स्ट, this is just the introduction about what is there in the chapter. When we actually start ना बेटा, तब थोड़ा slow होगा and numerical भी अपन ample numerical solve करेंगे, right? अभी तक हमने syllabus subject start नहीं किया. It is like just introduction कि भाई first chapter में हमने क्या पढ़ना है, second chapter में क्या पढ़ना है. सर वो क्या लिखा है? एनालॉग. Which one beta? Sir, the last one in second example. Analog circuit family, digital circuit families. All analog and digital circuit families belongs to FA with output but no final state. And most of the I think लगता मुझे कॉलेज में आपका DFA स्टार्ट हुआ रहेगा. करेक्ट है? रिप्लाई? यस सर. ओके. चलो, तो फर्स्ट चैप्टर में देखा क्या पढ़ना है. नाउ मूव ऑन टू सेकंड चैप्टर. रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड रेगुलर लैंग्वेज. ठीक है? यहां आपको पढ़ना है कि व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, बेसिकली हाउ टू राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन. What are the different properties of regular expression? See, when we are talking about machine, जब अपन मशीन के बारे में बात करते हैं, करेक्ट है? तो जब आप मशीन को इनपुट दोगे, तो अभी तक आपको पता है कि 3 टाइप के लैंग्वेजेस है जो आपको पता है. फर्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज, सेकंड इज बाइनरी लैंग्वेज जिसको आप मशीन लैंग्वेज बोलते हो, एंड थर्ड इज असेंबली लैंग्वेज. करेक्ट है? व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज कौन से आपने पढ़े? C, C++, Java. Yes, all are high level languages. So simply, what is high level language? Human understandable language is high level language. जिसको लिखने का predefined syntax होगा is called as high level language. What is machine language? Combination of zeros and ones, right? उसको machine language, binary language बोलते हो. तीसरा assembly language, जब आपने microprocessor पढ़ा, right? जब आपने DLCO पढ़ा 8085 8086, राइट? उसका जो लैंग्वेज मूव है, ऐड है, स्टॉप है, एंड है, स्टार्ट है, ये सब असेंबलर डायरेक्टिव्स है. मतलब इनको असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है, राइट? बट जब आप किसी मशीन को फाइनाइट ऑटोमेटा को इनपुट देंगे, राइट, तो अब आप इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज में तो नहीं दे सकते, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? यूजिंग सम एक्सप्रेशन कॉल्ड एज रेगुलर एक्सप्रेशन. अब एग्जांपल, मुझे मशीन को इनपुट देना है, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग. ध्यान दो, मशीन को इनपुट देना है, एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, राइट? अ मशीन व्हिच एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इफ इट एंड्स विद ABB.
या इफ इट एंड्स विद डबल अकरेंस ऑफ अल्फाबेट, या इफ इट एंड्स विद डबल, तो मैं कैसे एक्सप्रेशन लिखूंगा? क्योंकि मशीन को जब इनपुट देंगे तब अपने को एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, तो एक्सप्रेशन कैसे लिखूंगा? जैसे एग्जांपल, रेगुलर एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय से आ, करेक्ट है, और मेरा लैंग्वेज क्या है? एक्सेप्ट स्ट्रिंग, राइट, व्हिच एंड्स विद एबीबी। इसका मतलब है ऐसा लैंग्वेज जिसका एंड एबीबी होगा, मतलब एबीबी के बाद कुछ भी नहीं चलेगा, बट उसके पहले कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो आपको अगर ऐसा बोलना है एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट एंड्स विद एबीबी और उसको एक्सप्रेशन में लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा आर इज इक्वल टू ए और बी क्लोजर एबीबी। अंडरस्टूड? तो आपको लैंग्वेज टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन टू लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट इज रेगुलर एक्सप्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है। देन चैप्टर 3 इज अ ग्रामर, करेक्ट है? यस, ग्रामर इज डिफाइंड एज अ क्वाड्रपल, बराबर है। ग्रामर जी इज बेसिकली डिफाइंड एज अ क्वाड्रपल, VTPS, करेक्ट है। अब ध्यान दो इधर, जब हम DFA और NFA बोलेंगे सो ये भी एक मशीन है, जब मूर मशीन, मिली मशीन बोलेंगे तो ये भी एक मशीन है, इनका कुछ मैथमेटिकल मॉडल होगा। मतलब आप DFA NFA को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे? तो आपके कॉलेज में ऐसा बोला होगा, द मैथमेटिकल मॉडल और tuple representation of DFA NFA is M equal to Q summation del Q0 F. This is nothing but a 5 tuple representation of NFA and DFA. What is M? Tuple representation, mathematical model. Q summation del Q0 F, where Q is nothing but the finite set of states required for the design of DFA, or you can say NFA. Summation is a finite set of input alphabet. Del is a transition function. Q0 is your initial state. F is your final state. ये DFA NFA का 5 tuple representation है। तो डिफरेंस कहाँ है NFA और DFA में? तो ये है डिफरेंस डेल फंक्शन में। जब DFA बोलते हो तो डेल कैसा लिखोगे? Q इंटू समेशन गिव्स यू Q, मतलब मशीन एक स्टेट पे था, मशीन ने इनपुट सिंबल एक्सेप्ट किया, मशीन का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? NFA में डेल कैसे लिखते हैं? बोलेंगे Q इंटू समेशन गिव्स यू 2 रेज़ टू Q, बराबर है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है, राइट। ये अभी क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको जितने मशीन्स पढ़ने हैं, जैसे NFA DFA 5 टपल, मूर मशीन, मिली मशीन 6 टपल्स, ग्रामर पढ़ना है 4 टपल। Grammar is defined as 4 tuple, that is G equal to VTPS. What is V? Variables, right? जिसको नॉन टर्मिनल या वेरिएबल बोला जाता है। जनरली वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A to Z. Variable takes part in the derivation process, but they are not the part of derived sentence. तो ग्रामर लिखते टाइम what is variable, what is terminal, what is production rule, what is S stands for start variable, what is context free grammar, how to derive a sentence from the given grammar, how to simplify the grammar, what is Chomsky normal form, what is Grabatch normal form, how to remove the ambiguity in a grammar, ये सब टॉपिक आपको ग्रामर में पढ़ने हैं, राइट। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि अंदर अपने को क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, राइट। देन फोर्थ इज अ PDA, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। देखो PDA के पहले आपने कौन से मशीन पढ़े? DFA पढ़ा, NFA पढ़ा, मूर मशीन, मिली मशीन पढ़ा, राइट। फिर PDA क्यों चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली DFA, NFA, मूर मशीन, मिली मशीन एक्सेप्ट्स RE, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज। कुछ लिमिटेशंस है उसके, राइट। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक्सेप्ट करने वाला मशीन अपने को चाहिए, दैट इज पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ 7 tuple मशीन, करेक्ट है, which has its storage like a stack, which has a finite state controller which read the tape symbol from the
given input symbol. So PDA is a push down automata. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे what is DPDA, deterministic PDA, what is NPDA, that is non-deterministic PDA, how to convert your finite automata to PDA, RERL का PDA कैसे बनाने का, फाइनाइट ऑटोमेटा का पीडीए कैसे बनाने का, ग्रामर का पीडीए कैसे डिजाइन करने का, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पावरफुल मशीन अमंग्स ऑल द मशीन्स ऑफ टीसीएस, दैट इज ट्यूरिंग मशीन, राइट? सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, जैसे लाइक एग्जांपल अभी आपको थोड़ा थोड़ा कॉलेज में डीएफए के बारे में आइडिया आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास दो यूनरी नंबर है, बराबर है, जैसे सपोज m से m is equal to 0 0 0 मतलब सिंबल 3 एंड n is equal to से 0 0। अब ये दो नंबर का, दो यूनरी नंबर का एडिशन मुझे करना है, ऐसा मशीन डिजाइन करना है, तो वो डीएफए एनएफए में पॉसिबल है क्या? नहीं। इवन पीडीए में पॉसिबल है क्या? नहीं। उसको मेमोरी चाहिए, तो वो ट्यूरिंग मशीन में पॉसिबल है, राइट? सो ट्यूरिंग मशीन में सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन के प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे, एंड जो लास्ट मॉड्यूल है दैट इज अनडिसाइडेबिलिटी, ये चेक करेगा प्रॉब्लम सॉल्वेबल है कि प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है, करेक्ट है? तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, सिलेबस में क्या पढ़ना है। ये ओवरव्यू था, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। अंडरस्टूड? यस। अभी तक जो बताया उसमें कुछ डाउट, कोई क्वेरी? नो सर। पक्का? Any doubt, any query? No, sir. किसी को कुछ डाउट? आदित्य, एनी डाउट? ऐश्वर्या, गंगा, गौरव, हिमानी, जानवी, ओम, प्रणव, प्रथम, साक्षी, तेजस, वैष्णवी। अरे ये नाम मुझे बहुत सारे पढ़े हुए लग रहे हैं। सेमेस्टर 3 में हम मिले थे क्या? यस। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। सेमेस्टर 3 में हम पढ़े थे ना कुछ? यस। आदित्य, ऐश्वर्या, गौरव, अच्छा अनम्यूट नहीं कर सकते क्या आप खुद को? यस। मान्या, Yes, sir. ओके। अभी तक कुछ डाउट? No, sir. ओके ठीक है, चलो। तो अब राइट हेडिंग ये लिखाना सब आपने, इतना ही लिखना, राइट? ओके चलो नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एफएसएम। फर्स्ट टॉपिक इज एफएसएम। FSM. What is FSM? It is finite state machine. FSM, finite state machine. चलो मेरे साथ डेफिनेशन लिखेंगे आप। फाइनाइट स्टेट मशीन
finite state machine consists of finite set of states. Finite state machine consists of finite set of states capital S, which accepts finite set of input capital I to produce finite set of output capital O. Finite state machine consists of finite set of states capital S, which accepts finite set of inputs capital I to produce finite set of output capital O. Next line. FSM defines two functions. FSM defines two functions. First is a state function. That is STF, state function. What is state function? S into I gives you S. Second is machine function. What is machine function? Say MAF. What is machine function? S into I gives you O. बस इतना लिखो and नोटबुक बंद करो. फर्स्ट टॉपिक है आपका FSM, which is very very important. अगर FSM समझा, आपको DFA पूरा समझेगा, NFA समझेगा, मूर मशीन, मिली मशीन, तो चारों फाइनाइट ऑटोमेटा का ये बेस टॉपिक है, दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन. सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ FSM का डेफिनेशन है फाइनाइट स्टेट मशीन कंसिस्ट ऑफ finite set of states capital S, which accepts finite set of inputs capital I to produce finite set of output capital O. Full stop. FSM defines two functions. पहला state function S into I gives you S. Second machine function S into I gives you O. बस नोटबुक बंद कर दो और पूरा ध्यान इधर होना चाहिए. या पूरा ध्यान इधर होना चाहिए, अब कुछ लिखने का नहीं तुम. चलो, ready? Yes, sir. Yes. To design FSM, if you check the definition, three things are important. Finite state machine consists of finite set of states capital S. मतलब अपने को सबसे पहला important क्या है? तो states capital S, which accept finite set of input. So second is your input capital I, and next is output. What is output? Capital. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है टू डिजाइन एनी फाइनाइट स्टेट मशीन. तो सबसे पहला स्टेट. व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होता है? ध्यान दो. स्टेट इज नथिंग बट all possible modes in which a machine can work is called as state. कितने सारे पॉसिबल मोड्स में मशीन काम कर सकता है उसको बोलते हैं मशीन का स्टेट्स. एग्जांपल से ट्यूबलाइट, इट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, करेक्ट है. कितने स्टेट में काम करता है? सिर्फ दो, ऑन एंड ऑफ, करेक्ट है. से एग्जांपल कंप्यूटर, कंप्यूटर इज आल्सो इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कितने स्टेट में काम करता है कंप्यूटर? तीन. पहला, अगर वो ऑन है तो ऑब्वियसली लॉग ऑन, अगर वो ऑफ है तो शट डाउन होगा, एंड तीसरा वो स्टैंड बाय हो सकता है. तो कंप्यूटर के लिए तीन स्टेट है, लॉग ऑन, शट डाउन एंड स्टैंड बाय. आपके घर पे फैन होगा, करेक्ट है. रेगुलेटर देखो फैन का, लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, राइट. तो कितने स्टेट में काम करता है वो मशीन? 6 स्टेट में. अगर वो बंद है तो वो ऑफ होगा. दूसरा, अगर वो ऑन है तो 1 2 3 4 5 कितने भी स्पीड से वो घूम सकता है किसी भी स्टेट में. एग्जाम्पल टेलीविजन, घर पे 100 चैनल का टेलीविजन है, कितने स्टेट में काम करता है वो?
101. कैसे? अगर वो ऑफ है तो वो ऑफ होगा, अगर वो ऑन है तो it can show any one channel from 0 to 99. Understood? So what is basically a state? State is nothing but all possible modes in which a machine can work is called as state. Machine कितने possible mode में काम कर सकता है उसको बोलते हैं state of a machine. Understood? Yes. Next, second is input. What is input? Any finite combination of alphabet symbols accepted by a machine is called as input. अगर हम पहला एग्जांपल लेंगे फैन का तो what is input? Obviously switch, right? कंप्यूटर का एग्जांपल देंगे, what is input? Obviously switch button as well as the buttons which are present on the keyboard. करेक्ट है. अगर एग्जांपल लेंगे टेलीविजन का तो what is input? All the buttons present on the remote control through which you can change the channel or you can switch off the television or simply a switch. Correct है? Yes. So input मतलब any finite combination of alphabet symbol accepted by machine. Output. What is output? For any finite state machine, we have only two output possible. पहला, yes, machine is working. दूसरा, no, machine is not working. Again, I repeat. पहला, yes, machine is working. दूसरा, no, machine is not working. तो output बोलेंगे तो सिर्फ दो आएंगे, yes and no. अगर आपको अभी कोई भी मशीन FSM डिजाइन करना है तो तीन चीजें चाहिए. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट. दूसरा, आइडेंटिफाई द इनपुट्स. तीसरा, आइडेंटिफाई द आउटपुट. आउटपुट हमेशा यस नो होगा, इनपुट हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा. तो आपका मेन काम है हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेट. अब नीचे आते हैं. FSM डिफाइंस टू फंक्शंस. ये दोनों फंक्शन है क्या? ध्यान से सुनो, दोनों फंक्शन ये है क्या? पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है स्टेट फंक्शन. व्हाट इज स्टेट फंक्शन? S into I gives you S. ध्यान से सुनने का. सेकंड क्या है तुम्हारा? मशीन फंक्शन. व्हाट इज मशीन फंक्शन? S into I gives you O. दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला, स्टेट फंक्शन मतलब स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन. S into I gives you S को कैसे पढ़ेंगे? मशीन इज इन स्टेट S. If machine accepts input I, what will be the next state of machine? Again, S into I gives you S को कैसे पढ़ेंगे? Machine is in state S. If machine accepts input I, what will be the next state of machine? Machine function को कैसे पढ़ेंगे? S into I gives you O. मतलब machine is in state S. If machine accepts input I, what will be the output of a मशीन? अब ये समझने के लिए बता देता हूँ. ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर. दोनों का एग्जांपल बताता हूँ, समझेगा. ध्यान दो. State into input gives you state. Say example, currently you are watching a television and currently say channel number 30 is on, right? Channel number 30 आप देख रहे हो, करेक्ट है. आप बोलोगे सर ये जो आपने बताया एग्जांपल, ट्यूबलाइट का ऑन ऑफ, कंप्यूटर का लॉग ऑन या शट डाउन या स्टैंड बाय, फैन का आप बोले 2 का स्पीड, 4 का स्पीड, 5 का स्पीड, टेलीविजन का बोल रहे चैनल नंबर 30, 20, 90, 50, 60, ये स्टेट कैसे हो गए? सिंपल एग्जांपल बेटा, अगर घर पे टेलीविजन ऑन है, जब तक आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करते, जब तक आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करते, मशीन अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा. मॉर्निंग से लेके ट्यूबलाइट ऑन है, अभी इवनिंग तक ऑन है. ट्यूबलाइट ये नहीं बोल सकता कि अभी मेरे को कंटाला आया, मेरे को बंद होना है. फैन मॉर्निंग से फास्ट पे घूम रहा है, फैन खुद नहीं बोल सकता अब मैं थक गया बंद होता हूं ना. मशीन को एक बार आपने स्टेट असाइन कर दिया, उसके बाद जब तक कोई इवेंट या एक्शन या कोई इनपुट एक्सेप्ट नहीं होता, तब तक मशीन अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा. राइट. सो अब S into I gives you S. स्टेट फंक्शन क्या बोलता है? चलो, नाउ करंटली यू आर वाचिंग. ध्यान से सुनने का, दोनों का डिफरेंस. नाउ करंटली यू आर वाचिंग अ चैनल नंबर 30. तो व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ योर मशीन? चलो बोलो, आप अनलॉक करके बोलो फटाफट. चलो कोई एक अनलॉक करके बोलो. करंटली यू आर वाचिंग चैनल नंबर 30 ऑन योर टेलीविजन. तो व्हाट इज करंट स्टेट ऑफ मशीन? 30. Yes.
सो करंट स्टेट इज चैनल नंबर 30. अब ध्यान दो, अब नहीं बोलेगा, अब मैं बोलूंगा. करंट स्टेट इज चैनल नंबर 30. मैंने रिमोट कंट्रोल पे प्रेस किया 50, मतलब व्हाट इज योर इनपुट? इनपुट इज 50. करेक्ट है. आप चैनल नंबर 30 देख रहे थे, मतलब करंट स्टेट ऑफ अ मशीन इज चैनल नंबर 30. इनपुट प्रेस किया 50. करेक्ट है. अब व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? चैनल नंबर 50. करेक्ट है. चैनल नंबर 30 से मशीन चेंज करके चैनल नंबर 50 पे जाएगा. अंडरस्टूड? तो मशीन इज इन स्टेट एस. इफ मशीन एक्सेप्ट्स इनपुट आई, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट ऑफ मशीन? ध्यान देने का. अब यहाँ सेम एग्जांपल, आप चैनल नंबर 30 देख रहे थे, मतलब मशीन इज इन चैनल नंबर 30. मशीन इज इन स्टेट नंबर 30. इनपुट, आपने इनपुट प्रेस किया 50. ध्यान दो, इनपुट प्रेस किया 50, मतलब योर इनपुट इज 50. व्हाट इज द आउटपुट? बोलो, व्हाट इज आउटपुट? What is output? 50. No, because 50 is your state. And output क्या आएगा? Yes and no. तो यहाँ output क्या आएगा? Yes, machine is working. अब मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. पहला, मशीन फंक्शन चैनल नंबर 30 चालू था, आपने 50 प्रेस किया, आपका नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा? चैनल नंबर 50. अंडरस्टूड? यहाँ चैनल नंबर 30 चालू था, आपने प्रेस किया 50, आपका आउटपुट क्या आएगा? यस, मशीन इज वर्किंग. यस, टेलीविजन इज स्टिल ऑन. राइट. अगेन चैनल नंबर 50 पे थे, आपने इनपुट प्रेस किया, स्विच ऑफ का बटन, जो रेड कलर का रिमोट पे स्विच ऑफ का बटन होता है वो. व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेट? ऑफ. राइट. नेक्स्ट स्टेट इज ऑफ. यहीं पे अगर चैनल नंबर 50 पे थे, आपने इनपुट प्रेस किया, रेड कलर का बटन, आपका आउटपुट क्या आएगा? नो, मशीन इज नॉट वर्किंग. समझा? तो स्टेट फंक्शन में आपका आउटपुट नेक्स्ट स्टेट आता है, बट मशीन फंक्शन में आपका आउटपुट आता है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ मशीन. अंडरस्टूड? क्लियर? क्लियर? फॉर एनी एफएसएम आउटपुट सिर्फ 2 पॉसिबल है, यस एंड नो. यस, मशीन इज वर्किंग. नो, मशीन इज नॉट वर्किंग. और आप बोलोगे सर आपने एफएसएम के बारे में इंट्रोडक्शन के सिलेबस के इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं बोला था, फिर ये कहां से आया? बेटा, एफएसएम जब अपन पढ़ेंगे तब आपको डीएफए, मूर मशीन, मिली मशीन के कंसेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएंगे. फिर 2-3 प्रॉब्लम करने के बाद अपन पता चलेगा अरे जो अपन एफएसएम कर रहे थे वही डीएफए ही है. राइट. चलो, समझा? एफएसएम बेसिक आइडिया आया? यस सर. पक्का सबको? यस सर. अब आउटपुट तो क्लियर हो गया. फॉर एनी एफएसएम ओनली 2 आउटपुट पॉसिबल. इनपुट भी क्लियर हो गया, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. अब बात आती है स्टेट. हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेट. अब मैं तुमको कुछ शॉर्टकट मेथड बताता हूँ. न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्टेट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. ध्यान से सुनने का, ये जो मैं बोल रहा हूं 2 सेंटेंस ध्यान से सुनो. हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टेट. राइट. पहला क्वेश्चन, स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, उसी को क्वेश्चन पूछने का. पहला क्वेश्चन पूछने का, ऐसा कब होगा. क्या क्वेश्चन पूछने का? ऐसा कब होगा. तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल स्टेट. पहला क्वेश्चन रिपीट करता हूं, पूछने का ऐसा कब होगा. जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल स्टेट होगा. दूसरा क्वेश्चन पूछने का, क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं. फिर क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है इज योर ऑल पॉसिबल स्टेट्स. समझा? यस. पहला क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? ऐसा कब होगा. जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल स्टेट होगा. राइट. सेकंड क्वेश्चन पूछने का, हमेशा ऐसा होगा? नहीं. तो क्या क्या हो सकता है? तो जो भी आंसर आएगा वो आपके सारे पॉसिबल स्टेट्स बन जाएंगे. ठीक है. चलो, अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया है. ठीक है. चलो देखो, पहला क्वेश्चन, डिजाइन एफएसएम. आप कुछ लिखो मत, सिर्फ इधर देखो. पहले प्रॉपर समझो, फिर उसके बाद. डिजाइन एफएसएम टू चेक वेदर the given
decimal number is divisible by 3 or not, right? Design FSM to check whether the given decimal number is divisible by 3 or not. Solution. ध्यान दो इधर, कुछ लिखने की जरूरत. Design FSM to check whether the given decimal number is divisible by 3 or not. आपको फाइंड क्या करना है? अगर आपको FSM डिजाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए स्टेट, इनपुट, आउटपुट. अब मुझे बताओ इसमें से इनपुट बताओ. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. इनपुट क्या है? चेक वेदर द गिवन डेसिमल नंबर मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 9 इज डेसिमल नंबर. इनपुट इज गिवन इन द क्वेश्चन. आउटपुट क्या रहेगा? यस, नंबर इज डिविजिबल बाय 3. नो, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ठीक है. अब आपको फाइंड करना है स्टेट. व्हाट इज एस? इज नथिंग बट द स्टेट्स. चलो, स्टेट्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या पूछा था आपको? क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन पूछने का. क्वेश्चन क्या है? डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3. क्वेश्चन है डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3. तो अब मेरा सादा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, व्हेन यू से दैट the given decimal number is divisible by 3, ऐसा कब होगा? मतलब ऐसा कब होगा कि आप बोलोगे डेसिमल नंबर इज डिविजिबल बाय 3 है? आंसर दो. कब बोलोगे डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3 है? When It is a multiple of 3. करेक्ट. योगेश परफेक्ट. जब वो नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. आपने बेसिक फंडामेंटल इवन ऑड का कांसेप्ट पढ़ा होगा. इवन ऑड, व्हेन यू से अ नंबर इज इवन, व्हेन यू से अ नंबर इज ऑड, तो आप कैसा एक्सप्रेशन लिखते हो इवन ऑड के लिए? इफ यू वांट टू चेक वेदर एनी नंबर n इज इवन और ऑड, तो आप क्या करते हो? n% 2 equal to 0. तो व्हाट इज दैट परसेंट? परसेंट इज नथिंग बट मॉड्यूलो ऑपरेशन. एंड योगेश ने चैट में करेक्ट लिखा हुआ है. क्या लिखा? इफ यू डिवाइड एनी डेसिमल नंबर बाय 3 एंड इफ यू गेट रिमाइंडर 0, दैट मींस द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. और इन शॉर्ट if you divide any number by n and if you get remainder 0, means that number is divisible by n. ठीक है. सो कोई भी डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3 कब होगा? जब आप उसको डिवाइड करोगे बाय 3 एंड आपको मिलेगा रिमाइंडर 0. तो रिमाइंडर 0 इज योर फाइनल स्टेट. तो मैं लिखता हूं दैट स्टेट इज Q0. व्हाट इज Q0? Q0 इज remainder 0 state. Q0 is remainder 0 state, right? ये आपका फाइनल स्टेट है. मैंने बोला सेकंड क्वेश्चन क्या पूछने का? क्या हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा होगा मतलब whenever you divide any decimal number by 3, हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा क्या? तो आंसर है नहीं. तो क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है बताओ मुझे? क्या 1 आ सकता है, करेक्ट. और यस ऐश्वर्या करेक्ट. 2 आ सकता है, करेक्ट. और बस इतने आ सकते हैं. 3. ओके, यस. सो नेक्स्ट स्टेट इज Q1. व्हाट इज Q1? Q1 is remainder 1 state. Q1 is remainder 1 state. And Q2, what is Q2? Is remainder 2 state. Correct है. So possible states are Q0 remainder 0 state, Q1 remainder 1, Q2 remainder 2. अब थोड़ा generalize बोलता हूँ. If you divide any number by n, आप किसी भी नंबर को अगर n से डिवाइड करेंगे तो कब बोलेंगे कि वो नंबर n से डिविजिबल है? जब आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा. या इन शॉर्ट अदर वे, इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय n, कितने पॉसिबल रिमाइंडर है? 0 to n-1. तो यहाँ डेसिमल नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो कितने रिमाइंडर पॉसिबल है? 0 to 3-1, मतलब 0, 1 and 2 आ गया. एंड देयर इज वन मोर स्टेट associated with each and every machine called as
QS, that is nothing but the start state, that is a start state. अब कैसा है कि हर मशीन को स्टार्ट स्टेट की जरूरत नहीं होती है, कुछ मशीन को स्टार्ट स्टेट लगता है, कुछ को स्टार्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जनरलाइज करता हूं, अगर मुझे किसी मशीन के लिए स्टार्ट स्टेट लगता है तो मैं सारे मशीन के लिए स्टार्ट स्टेट यूज करूंगा। तो व्हाट इज QS? QS इज नथिंग बट द स्टार्ट स्टेट, मतलब ऐसा स्टेट विच एक्सेप्ट्स या विच हैज अ स्टार्टअप टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मशीन। मतलब स्टार्ट स्टेट हर मशीन के लिए ऐसा स्टेट है जो स्टार्ट टाइम डिनोट करता है, मतलब इनिशियली स्ट्रिंग इज एम्प्टी फॉर दैट स्टेट। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल स्टेट्स आ गए, करेक्ट है। तो चलो FSM डिजाइन करना है, इनपुट आया, आउटपुट आया, स्टेट आया, अब मुझे बनाना है स्टेट फंक्शन। ध्यान दो, स्टेट फंक्शन, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? S into I gives you S, करेक्ट है। चलो ध्यान दो इधर, अभी ये 2 डायमेंशनल टेबल है, राइट? दिस इज स्टेट, दिस इज इनपुट। State is QS, which is the start state denoted by arrowheads. Then Q0 is the final denoted by star asterisk. Then Q1 and Q2, करेक्ट है। चलो स्टेट मैंने लिख दिए। Now input, now input, अब इनपुट क्या है? इनपुट इज डेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 till 9। तो आइदर मैं लिख सकता हूं 0 1 2 3 4 5 6 till 9, 10 अलग अलग कॉलम बना सकता हूं, बट मैं इस इनपुट का ग्रुप करूंगा, राइट? तो फर्स्ट ग्रुप होगा 0 3 6 9। अब ये ग्रुप क्यों? बिकॉज 0 3 6 9 में से किसी भी नंबर को इफ यू डिवाइड बाय 3 आपको सेम रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा उससे मुझे लेना देना नहीं, सेम रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट ग्रुप इज 1 4 7, द नेक्स्ट ग्रुप इज 2 5 8, ठीक है। यस, ओके। अगर आपको ग्रुपिंग नहीं समझता तो नो प्रॉब्लम, आप 0 to 9 ऐसे 10 कॉलम्स करो, बाद में आप ही को पता चल जाएगा जो 0th कॉलम का आंसर आएगा वही 3 का होगा, 6 का होगा, 9 का होगा। या मैंने ऐसे इनपुट्स को ग्रुप किया जिनको 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर सेम आता है। चलो आप देखो, ध्यान दो इधर, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज यहाँ ध्यान दो, टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेबल समझा आपका मशीन बन जाएगा तुरंत, राइट? अब चलो देखो, व्हाट इज QS? ये टोटल 12 एंट्री है, मैं हर एक एंट्री को 2-2 बार बताऊंगा, ध्यान से। व्हाट इज QS इज दैट, QS बोलता है आई एम अ स्टार्ट स्टेट। व्हाट QS इज दैट, आई एम अ स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था। QS इज दैट आई एम अ स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ओके, इनिशियली एम्प्टी, करेक्ट है। देन 0 3 6 9 में से कोई एक इनपुट आया, 0 3 6 9 में से कोई भी एक इनपुट आया, सपोज 3 आया, ठीक है। शायद आप बोल रहे होगे सर 3 क्यों लिया, 6 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ले लो 6, ठीक है। कोई लोग बोल रहे हैं सर फिर 0 3 6 9 में से 9 ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ले लो 9, जो आपको लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो QS इज द स्टार्ट स्टेट, मतलब इनिशियली कुछ भी नहीं था, एक इनपुट आ गया 0 3 6 9 में से मैंने लिया 3। अब नंबर क्या हुआ, नंबर इज 3, नंबर इज 3। इफ यू डिवाइड दिस नंबर 3 बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर Q0। again what is QS? QS says that I am a start state, मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर आपने 3 लिया ना, 6 लिया होता तो ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर। सर आपने 9 लिया होता तो ठीक है ना, डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर, सेम ही आएगा। अरे समझा? ओके, यस यस सर, ओके। चलो नाउ QS इज द स्टार्ट स्टेट, कुछ भी नहीं था। 1 4 7 में से एक नंबर आया, चलो सपोज 4 आया, अब मेरा नंबर क्या हुआ टोटल 4, डिवाइड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 1, रिमाइंडर 1 मतलब Q1। आप बोलोगे सर 4 क्यों लिया, 7 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो लेके सेम ही आएगा। नेक्स्ट 2 5 8, QS इज अ स्टार्ट स्टेट, कुछ भी नहीं था, ऊपर से 2 5 8 में से एक नंबर आया, से 8, नाउ द नंबर बिकम्स 8, डिवाइड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? रिमाइंडर मतलब Q2। अब व्हाट इज Q0? Q0 इज अ स्टार्ट स्टेट, Q0 is a reminder 0 state, right? What is reminder 0? What is Q0? Reminder 0 means
मेरे पास ऑलरेडी ऐसा इनपुट था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। Q0 बेसिकली इट इज रिमाइंडर 0 स्टेट। मतलब Q0 says that मेरे पास ऑलरेडी ऐसा नंबर था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी 0 था। अच्छा, जरूरी है क्या 0 था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 3 ले लो ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जरूरी है क्या मेरे पास 3 था? नहीं सर, 60 ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। Q0 says that I am reminder 0 state। मतलब मेरे पास ऑलरेडी ऐसा इनपुट था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। अब 0 3 6 9 में से कोई भी एक इनपुट आया, सपोज 6, राइट? तो 0 6 becomes 6। नाउ 6 डिवाइड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 0। आप बोलोगे सर मैंने 3 लिया था, ठीक है ना? 0 3 6 9 में से कोई भी इनपुट आया, 6 36 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 0। सर हमने तो 60 लिया था, ओके, ऊपर से आ गया 9, सो 609 डिवाइड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 1 एंड 6। ठीक है, नाउ व्हाट इज Q0? इट इज रिमाइंडर 0। मतलब मैं कैलकुलेशन के लिए सिंपल नंबर लेता हूं 0, ऊपर से 147 में से कोई एक नंबर आया 7 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज Q1। Q0 says that I am reminder 0, मेरे पास ऑलरेडी था। 258 में से कोई एक नंबर आया 2 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 2, दैट इज Q2। What is Q1? Q1 means reminder 1। Q1 says that I am reminder 1 state। मेरे पास ऑलरेडी ऐसा इनपुट था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। तो चलो मेरे पास 1 था। अच्छा, जरूरी है क्या मेरे पास 1 ही होगा? 4 भी हो सकता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 4 ले लो। चलो 0 3 6 9 में से कोई एक इनपुट आया, चलो 6 आया, चलो इधर भी 6 आया। अब आप 46 लो या 16 लो, डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। Q1। ओके, नाउ Q1 इज अगेन यहाँ भी 46 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 1 आएगा। Q1 says that I am reminder 1 state। 147 में से कोई एक नंबर आया 1, so 1 in decimal is 11। 11 divided by 3, what is reminder? Is 2। करेक्ट है। Q1 says that I am reminder 1 state, ऊपर से आ गया 8। चलो 18 is 18, 18 is 18 divide by 3, reminder 0। Q2 says that I am reminder 2 state। मेरे पास ऑलरेडी ऐसा इनपुट था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है, ऊपर आ गया 9, so 29 डिवाइड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 29 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 2। Q2 says that I am reminder 2 state, ऊपर से आ गया 7, 27 डिवाइड बाय 3, व्हाट इज रिमाइंडर? 0। Q2 is reminder 2 state, ऊपर से आ गया 5, so 25 रिमाइंडर 1। यस, यहां तक सबको समझा? यस। अब देखो, इसी को बोलते हैं मशीन इज इन स्टेट S। इफ मशीन एक्सेप्ट्स इनपुट I, what will be the next state of machine? करेक्ट है, मशीन इज इन स्टेट S, मशीन एक्सेप्ट इनपुट I, मशीन का नेक्स्ट स्टेट क्या होगा? राइट। अब जब मशीन फंक्शन की बात करेंगे तो मशीन फंक्शन क्या बोलता है? S into I gives you O। O मतलब आउटपुट, O मतलब आउटपुट, करेक्ट है। तो आउटपुट में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी, हाँ या ना। तो मशीन इनपुट को एक्सेप्ट कब करेगा? जब कंप्लीट स्कैन होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा। तो आंसर यही रहेगा, बट सिर्फ जहां जहां Q0 लिखा हुआ है वहां अपन यस लिख देंगे, बाकी सब जगह पे नो। अंडरस्टूड? यस, समझा? यस, सबको समझा? अब हम मशीन कहाँ बनाएंगे? ये तो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, अब अपन इसका मशीन डिजाइन करेंगे। चलो यहाँ छोटा सा जगह है, मैं मशीन बना देता हूँ इसका। ठीक है, चलो देखो इधर। अब स्टेट is QS is my start state denoted by arrowheads। Then next state is Q0, which is my final state denoted by double circle। Then Q1 is next state, then next state is Q2। हो गया, स्टेट मैंने लिख दिया, QS, Q0, Q1, Q2, डन। ओके, चलो अब ट्रांजिशन लिखना है। अब दिस ट्रांजिशन
डायग्राम इज नथिंग बट, हमने सेमेस्टर 3 में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कौन सा डायग्राम पढ़ा था, डायग्राफ पढ़ा था, वही अपन बना रहे। देखो QS पे 0369 तो Q0, सो QS पे 0369 तो Q0, QS पे 147, QS पे 147, QS पे 258 तो Q2, QS पे 258 तो Q2, डन। नाउ Q0 पे 0369 तो सेम ट्रांजिशन 0369, Q0 पे 147 तो आएगा आपका Q1, Q0 पे 258 इस Q2, Q0 पे 258, डन। now Q1 पे 0369 is same 0369, ठीक है। नेक्स्ट Q1 पे 147 is Q2, Q1 पे 147 is Q2, Q1 पे 258 is Q0, 258 is Q0, done। then Q2 पे 0369 is Q2, 0369, then 147 is Q0, चलो यहां से निकालेंगे 147, ठीक है। then next is 258 is Q1, तो यहां से निकालेंगे 25, okay, yes, got it, yes। diagrammatic representation, this is called as FSM, finite state machine हमने बना दिया, ओके। अब चेक करते हैं जो मैंने मशीन बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं। चलो एक एक इनपुट लेके चेक करते हैं, लिसन, या ध्यान दो। अब एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं, चलो ट्रांजिशन QS इज माय स्टार्ट स्टेट। चलो बोलो कोई भी एक इनपुट बोलो, कोई भी एक इनपुट बोलो। ये विजिबल नहीं है आई थिंक कलर, I think this color is not visible, so visible color लेंगे, ठीक। चलो ट्रांजिशन QS बोलो कोई भी इनपुट, इज इट विजिबल? ट्रांजिशन QS बोलो कोई भी इनपुट बोलो, कोई भी नंबर बोलो, कोई भी नंबर। चलो मैं लेता हूं 432, is it 432 is divisible by 3? Is it 432 divisible by 3? Yes, sir. Yes. So after scanning this entire input, if machine halt at the state Q0 which is final, then your input is accepted. Check. Transition. चलो QS पे पहला अंदर गया 4, बाहर बचा 32। चलो QS पे 4, check transition। QS पे 4, Q1, correct। Q1, अब यहाँ आएगा 3, बाहर बचा 2। Q1 पे 3 is Q1, yes, Q1 पे 3 is Q1, okay, Q1 and अंदर गया 2। Q1 पे 2 is Q0। Is it Q0 is your final state? Yes, मतलब your input is accepted, मतलब this number is divisible by 3। आंसर करेक्ट है, समझा? Yes, sir. सबको कंफर्म? Yes, sir. परफेक्ट। सर एक बार ये वाला 432 का बता दो ना वापस से। कुछ नहीं, देखो जब मशीन को आप इनपुट दोगे तो सिंबल बाय सिंबल इनपुट देना है। तो माय स्ट्रिंग इज 432। सी 432 इज अ स्ट्रिंग, इट इज अ फाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेसिमल नंबर 0 to 9। तो कोई भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, पर जब मशीन को इनपुट जाएगा तो
सिंबल बाय सिंबल जाएगा। तो चलो मशीन हमेशा स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि QS इज योर स्टार्ट स्टेट। चलो मशीन QS पे था तो पहला इनपुट अंदर गया 4। अब ट्रांजिशन देखो QS पे 4, ट्रांजिशन देखो QS पे 4, बोलो किधर जा रहा है Q1। ओके तो मैंने लिखा QS पे 4 इज Q1। अब नेक्स्ट सिंबल अंदर आ गया 3, अब बोलो QS पे 3, सॉरी Q1 पे 3, तो देखो Q1 पे 3, बोलो Q1 पे 3 क्या है Q1, तो इसका रिजल्ट Q1। अब 2 गया अंदर, अब Q1 पे 2 बोलो, Q1 पे 2, ये देखो Q1 और ये देखो Q1 पे 2, Q1 पे 2 क्या है Q0। आफ्टर स्कैनिंग द कंप्लीट इनपुट मशीन आपका कहाँ रुका आके, आपका मशीन रुका आपका Q0 पे, एंड Q0 इज फाइनल। हाँ Q0 इज फाइनल, मतलब योर इनपुट इज एक्सेप्टेड। समझा? यस यस ओके डन, सबको समझा? यस सर। लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगा। बेटर अपन थोड़े और न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? लिखने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज एवरी द प्रोविजन इज ऑलरेडी देयर ऑन दिस बोर्ड कि हम ड्राइव से लेके आपको भेज सकते हैं। आप सिर्फ समझो, फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं वो समझो। इज इट कंसेप्ट क्लियर? चलो करें नेक्स्ट पे स्विच। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, अब थोड़े थोड़े आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने डेसिमल डिविजिबिलिटी बाय 3, आप देखो यार। सेकंड क्वेश्चन है डिजाइन FSM, डिजाइन FSM to check whether the given binary number is divisible by say 5 or not, या से whether the given binary number is divisible by 3 or not। 5 में स्टेट ज्यादा आएंगे तो अपन 3 ही लेंगे, ठीक है? चलो बोलो सॉल्यूशन। अब इनपुट बोलो क्या है, क्वेश्चन में दिया इनपुट 0 1 क्योंकि बाइनरी नंबर है। आउटपुट क्या आएगा, यस नंबर डिविजिबल बाय 3, नो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। स्टेट्स क्या आएंगे बोलो, स्टेट्स क्या आएंगे बोलो, अभी आप बोलो। बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3, स्टेट्स क्या आएंगे बोलो? 0। यस पहला तो QS which is a start state, then Q0 is reminder 0, then Q1 is your reminder 1, then Q2 is reminder 2। अगर मैंने यहाँ 5 लिखा होता तो Q3 आता रिमाइंडर 3, Q4 आता रिमाइंडर 4। करेक्ट है? यस चलो अब स्टेट बोलो, स्टेट फंक्शन। ध्यान दो इधर, स्टेट फंक्शन। आपके कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं मुझे बताओ, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेट। थोड़े से कंसेप्ट क्लियर? चलो मैं थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान दो इधर। अब या डिजाइन FSM to accept string if it start with A and ends with B over summation input alphabet AB। ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डिजाइन FSM to accept a string
to accept a string if it contains even zeros and odd ones over summation 0,1। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिए बिकॉज मुझे ये चेक करना है आपको स्टेट समझता है कि नहीं, स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करने का। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, डिजाइन मशीन टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग, राइट। आपको मशीन डिजाइन करना है जो इनपुट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, कब, इफ इट कंटेन्स, देखो, डिजाइन एफएसएम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी ओवर समेशन ए कॉमा बी। मतलब आपके पास जो स्ट्रिंग होगा which is a finite combination of a and b, बट आपको एक्सेप्ट कब बोलना है, उसका स्टार्ट ए से होगा एंड बी से होगा, तभी बोलना है। अब सिंपल, एक्सेप्ट कब बोलना है, मतलब फाइनल स्टेट क्वेश्चन में दिया है स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी है, मतलब इट इज लाइक दिस, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, तो एक्सेप्ट बोलो। अब क्वेश्चन पूछने का हमेशा ऐसा होगा, मतलब इफ यू एक्सेप्ट या इफ यू राइट एनी स्ट्रिंग which is a combination of a and b, उसका हमेशा स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी हो सकता है क्या रे? तो आंसर नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, स्टार्ट विथ ए एंड विथ ए, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए एंड स्टार्ट विथ बी एंड विथ बी। तो ऐसे 4 पॉसिबल स्टेट्स आएंगे इस न्यूमेरिकल के लिए। इधर डिजाइन एफएसएम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग if it contains even number of zeros and odd number of ones over summation 0,1। यहां हम एक्सेप्ट करेंगे a string which is finite combination of 0 and 1, बट आपने को एक्सेप्ट कब करना है स्ट्रिंग को, जब उसमें even number of zeros and odd number of ones रहेंगे। तो एक्सेप्ट कब करने का मतलब फाइनल स्टेट दिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 0 and 1 के कॉम्बिनेशन का कोई भी स्ट्रिंग लिखूंगा, उसमें हमेशा इवन 0 ऑड 1 रहेंगे क्या रे? नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, इवन 0 इवन 1, इवन 0 ऑड 1, ऑड 0 इवन 1, ऑड 0 ऑड 1। तो ये मेरे सारे पॉसिबल स्टेट्स हैं। अरे समझा? यस सर। यस। स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करना है सबको समझा? स्टेट कैसे आइडेंटिफाई करने का समझा? यस। पक्का? कंफर्म? यस। आवाज आना चाहिए बेटा। आवाज कहाँ गया? यस सर। हाँ, एक का ही आ रहा है सिर्फ आवाज। चलो, स्टेट फंक्शन s into i gives you s। तो चलो बोलो स्टेट, बोलो इनपुट। स्टेट इनपुट, इनपुट सिर्फ पॉसिबल है 0 1। स्टेट्स क्या क्या है, QS is a start state, Q0 मतलब रिमाइंडर 0 फाइनल, देन Q1 एंड Q2। ठीक है, अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन किया वो डेसिमल था, ये क्वेश्चन है बाइनरी, राइट। QS बोलता है आई एम अ स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ऊपर से इनपुट आ गया 0, नंबर बन गया 0, डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 0। QS बोलता है स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ नहीं था, ऊपर से आ गया 1, नंबर बन गया 1, डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 1। ओके। Q0 says that I am रिमाइंडर 0 स्टेट, मतलब मेरे पास ऑलरेडी ऐसा नंबर था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो मैंने सिंपल नंबर लिया 0। ऊपर से आ गया 0, तो 0 0 बिकम 0, डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर 0। Q0 is रिमाइंडर 0 स्टेट, ऊपर से आ गया 1, 0 1 is 1, divide by 3, reminder 1। then Q1 is रिमाइंडर 1 स्टेट, मतलब रिमाइंडर 1 स्टेट बोलता है मेरे पास ऑलरेडी ऐसा नंबर था जिसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 आता है, तो मेरे पास 1 ऑलरेडी था। चलो, ऊपर से आ गया 0, नाउ 1 0 इन बाइनरी, 1 0 इन बाइनरी इज 2,
भाई 1 0 10 नहीं होता, ये बाइनरी नंबर 1 0 in binary is 2. Now 2 divided by 3 is remainder 2. Q1 is remainder 1 state, ऊपर से आ गया 1. 1 1 is 3 in binary, divide by 3 remainder 0. Q2 says that I am remainder 2, मतलब मेरे पास ऑलरेडी ऐसा नंबर था जिसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी 2 था मतलब मेरे पास 1 0 था, ऊपर से आ गया 0. Now 1 0 0 मतलब 4 divided by 3, what is remainder 1. Q2 says that I am remainder 2 state, मतलब 2 मेरे पास ऑलरेडी था, ऊपर से आ गया 1. 1 0 1 is 5 divided by 3 remainder is 2. ओके, अब इसका मशीन फंक्शन जब अपन बनाएंगे तब क्या आएगा मशीन फंक्शन, जो फाइनल स्टेट है Q0 वहां यस आएगा, फाइनल स्टेट है वहां यस आएगा, बाकी सब जगह पे नो आएगा. यस, अब मशीन बनाएंगे तो चलो QS इज माय स्टार्ट स्टेट, उसके बाद Q0 इज फाइनल स्टेट, देन Q1 एंड Q2, राइट. चलो QS पे 0 इज Q0, QS पे 1 is Q1, Q0 पे 0 is Q0, Q0 पे 1 is Q1, Q1 पे 0 is Q2, Q1 पे 1 is Q0, then Q2 पे 0 is Q1 and Q2 पे 1 is Q2. Okay, yes. अब चेक करते हैं ट्रांजिशन QS on 1 1 0 0. चलो मुझे बताओ क्या 1 1 0 0 is this number is divisible by 3, because 1 1 0 0 होता है 12, right? तो 12 is divisible by 3. yes. चेक करते. चलो QS पे पहला इनपुट अंदर गया 1, बाहर बचा 1 0 0. चलो QS पे 1 is Q1. ओके, QS पे 1 is Q1. अब अंदर गया 1, बाहर बचा 0 0. Q1 पे 1 is Q0 अंदर गया 0, बाहर बचा 0. Q0 पे 0 is Q0 अंदर गया लास्ट वाला 0. Q0 पे 0 is Q0. Is it Q0 final? Yes. मतलब your input is accepted, means this input is divisible by 3. ये बाइनरी नंबर divisible by 3. ओके, अभी कुछ बच्चे जो अभी बैठे हुए लेक्चर में थोड़ा सा ऐसा सोच रहे होंगे. क्या सोच रहे होंगे? सर हमको कॉलेज में थोड़ा सा ऐसा कराया है कि ये डायग्राम पहले ड्रॉ किया है, ये टेबल का कंसेप्ट नहीं है. ऐसा सोच रहे होंगे पहला. दूसरे लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर बिना स्टार्ट स्टेट के भी काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं यहाँ QS लेने की. तो दोनों क्वेश्चन के लिए मेरे पास आंसर है. पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है फॉर दिस मशीन एंड द प्रीवियस मशीन जो हमने बनाया वहां QS की जरूरत नहीं है. बट अगर मुझे ऐसा DFA बनाना है विच स्टार्ट्स विद डबल अकरेंस, ध्यान दो, कैसा बनाना है DFA? स्टार्ट विद डबल अकरेंस, मतलब एक्सेप्ट स्ट्रिंग. ध्यान दो इधर, ये अलग कंसेप्ट है. अभी ध्यान दो इधर, ये अलग कंसेप्ट है. ध्यान दो इधर. एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट्स विद डबल अकरेंस. मुझे बताओ स्टार्ट विद डबल अकरेंस मतलब कॉलेज में ऐसा बताया तुमको स्टार्ट विद डबल अकरेंस का मतलब होता है ए और ए आ गया तो एक्सेप्ट करो, या अगर डबल भी आता है तो आपको एक्सेप्ट करना है. करेक्ट है? यस. अब अगर पहले ए के बाद अगर सेकंड बी आता है तो आप डेड स्टेट में चले जाते हो, क्योंकि पहला ए फिर बी, उसके आगे कुछ भी आया तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे. पहला बी आया, दूसरा ए आया, उसके बाद कुछ भी आया तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो देखो अब यहाँ स्टार्ट स्टेट की जरूरत पड़ती है. तो मैंने जनरलाइज किया है, सारे मशीन को मैं स्टार्ट स्टेट लगाऊंगा. होगा क्या? जब अपन सिलेबस में आगे पढ़ेंगे तो अपने को ये भी पढ़ना है हाउ टू मिनिमाइज द गिवन DFA.
डीएफए को मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो देखो अब यहाँ पे अगर आप QS देखते हो एंड Q0 देखते हो तो आपको पता चलेगा ड्यूरिंग द मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए यू हैव टू मर्ज द स्टेट्स। जब आप डीएफए का मिनिमाइजेशन करते हो तब आपको स्टेट को मर्ज करना पड़ता है। तो स्टेट को मर्ज करते टाइम कौन सा रूल है? स्टेट को मर्ज करते टाइम वही रूल है, ध्यान दो, रूल ये बोलता है कि वही स्टेट मर्ज होंगे जो सेम स्टेट पे सेम इनपुट ट्रांजिशन देते हैं। बट मर्ज करते टाइम एक थंब रूल अपन अप्लाई करते हैं। वो थंब रूल ये है कि ओनली स्टार्ट कैन मर्ज, मतलब ओनली फाइनल कैन मर्ज, नॉन फाइनल कैन मर्ज। आप जब स्टेट को मर्ज करते हो तो फाइनल के साथ मर्ज हो सकता है, नॉन फाइनल के साथ मर्ज हो सकता है, फाइनल नॉन फाइनल के साथ मर्ज नहीं हो सकता, राइट। तो जब अभी आपको एक्स्ट्रा स्टेट लेके ऐसा लग रहा है कि सर इसकी जरूरत नहीं, तो यहाँ इट्स ओके, बट कुछ ऐसे मशीन्स रहेंगे जहां आपको स्टेट कंपलसरी लेना पड़ेगा। तो मैंने सारे डीएफए सारे एफएसएम के लिए स्टार्ट स्टेट लिया। जब अपन मिनिमाइजेशन करेंगे तब देखेंगे कि स्टेट मर्ज कैसे हो सकता है। समझा? अरे यस, समझा कंसेप्ट? अरे हाँ या नहीं? यस यस सर। ओके, तो अभी तक जितना बताया आपको आइडिया आया? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन में कुछ क्वेरी? सर वो QS में 1101 कहाँ से आया? मतलब वो बाइनरी में 12 कैसे आया? ये वाला? हाँ सर। ये देख कैसा होता है, जैसे ये नंबर है, क्या नंबर है ये? 420। कैसे? क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। हाँ, अब डेसिमल नंबर मतलब ये पोजीशन को यूनिट बोलते हो, ये पोजीशन को डेसिमल बोलते हो, ये पोजीशन को हंड्रेड बोलते हो। तो ये नंबर ऐसा होता है ना, 4 × 10⁻³ प्लस, सॉरी 0 के बाद 1 आएगा, ये जो नंबर आपने लिखा 420 इन डेसिमल, तो ये आएगा 10⁻0 पोजीशन, ये 10⁻1 पोजीशन और ये 10⁻2 पोजीशन। तो इसको आएगा इट इज 4 × 10⁻² प्लस 2 × 10⁻1 प्लस 0 × 10⁻0। अब जब इसका ऐड करोगे तो आंसर 420 आएगा। तो ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर मतलब दिस पोजीशन इज 2⁻0, दिस पोजीशन इज 2⁻1, दिस पोजीशन इज 2⁻2, दिस पोजीशन इज 2⁻3। अब चलो 2⁻3 कितना होता है? 8, मतलब ये हो गया 8। 2⁻2 कितना होता है? 4। 8 + 4 कितना आता है? 12। ये नंबर 12, मतलब डेसिमल में इसको 12 बोलेंगे और बाइनरी में 1100। नहीं सर वो नहीं, मैं सर हमने ऐसा 12 क्यों कंसीडर किया वो पूछ रहा था। हाँ हाँ, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तू दूसरा कंसीडर कर। कौन सा कंसीडर करना है? 7 करना है? 7। अच्छा, मतलब बाय डिफॉल्ट। हाँ, मशीन स्टार्ट स्टेट में 7 मतलब 1 1 1। अब मुझे बताओ क्या 7 डिविजिबल बाय 3 है क्या? नहीं। बट इफ यू डिवाइड, अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। चेक करो, आएगा, देखो। हाँ सर, चेक करो, QS पे पहला गया अंदर 1, बाहर बचा 1। QS पे 1, Q1, तो इसका आंसर आ गया Q1। अब अंदर गया 1, बाहर बचा 1। बोलो Q1 पे 1, Q1 पे 1, Q0 बराबर। अब अंदर गया 1, चलो Q0 पे 1, Q1। क्या Q1 आपका फाइनल स्टेट है? नो। मतलब दिस इनपुट इज रिजेक्टेड, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। समझा हाँ, सर। यस। सर योगेश, एक सेकंड, योगेश का क्वेश्चन है। योगेश, अगर याद होगा मैंने डीएफए एनएफए का मैथमेटिकल मॉडल बताया था आपको, तब उसमें मैंने क्या लिखा था? मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डीएफए एनएफए इज
M is equal to Q summation del Q0 F, right? So finite set of states, input alphabet del transition function. ओके हाँ बोलो। यस सर वो गए क्वेश्चन में ऐसा डेसिमल नंबर बोला था, इसके लिए डेसिमल एग्जांपल लिए थे, इसमें बाइनरी बोला इसके लिए 110 से लेना है। यस क्योंकि अपन वहां चेक करते थे डेसिमल नंबर डिविजिबल, यहाँ चेक कर रहे बाइनरी नंबर डिविजिबल, तो एग्जांपल बाइनरी नंबर। सी मशीन ही बोलता है टू चेक वेदर द गिवन बाइनरी नंबर डिविजिबल है। मतलब कैसे हो गया, अपन प्रोग्राम लिख, सिंपल अपन प्रोग्राम लिखते हैं चेक वेदर द गिवन चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट। ऐसे तूने सी में प्रोग्राम लिखा, जावा प्रोग्राम लिखा, जिसमें लिखना है लिखा एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट, और तू इनपुट क्या दे रहा है PQR, तो इनपुट रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि जब तूने डिक्लेयर किया इंटीजर n तो एक्सपेक्टेड है कि पूरा नंबर भी इनपुट इंटीजर ही होगा। यस सर। यस बोलो और क्वेरी कोई? चलो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट शीट की जरूरत नहीं तो कैसे, और एक क्वेरी मैंने निकाला था सर जनरली हमको यहाँ ये जो डायग्राम है ये डायग्राम बोलते हैं ड्रॉ करो, और वही मशीन ही टेबल की जरूरत नहीं, राइट? तो उनके लिए मेरा ये आंसर है बेटा कैसा है, TCS ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने ब्रांच का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट? या जिसको आप CS भी बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है अपने ब्रांच का और अपने ब्रांच का कोर सब्जेक्ट भी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि जब आप मास्टर्स के लिए गेट पढ़ोगे, राइट? यस, तो गेट में ये जो सब्जेक्ट है इसको TOC बोलते हैं, थियोरी ऑफ कंपाइलेशन, करेक्ट है? तो यहाँ इसका वेटेज जो है वो मैक्सिमम है, करेक्ट है? एंड जब TCS आप पढ़ोगे तो मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स इंजीनियरिंग कराऊंगा। जब ये टेबल आपको समझेगा अच्छे से तो डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, बट अगर डायग्राम डायरेक्टली आप बनाते हो तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, आपको सारे मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट है? यस, बट अपन जब ये टेबल बनाएंगे तो ये डायग्राम बनाना एकदम मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? और ये डायग्राम मतलब ही मशीन है, FSM, ये डायग्राम मतलब ही DFA है, ठीक है? सर एक डाउट था। बोलो। सर आपने अभी 111 लिया, वैसे केसेस कितने ले सकते हैं, मतलब एक सिंगल केस? जनरली एक वैलिड केस लेना चाहिए, एक इनवैलिड लेना चाहिए। मतलब एक ऐसा इनपुट लो आप जो डिविजिबल बाय 3 है, एक ऐसा इनपुट लो जो डिविजिबल बाय 3 नहीं है। ओके सर, ऐसा, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर थोड़े थोड़े हैं? एक और क्वेश्चन करेंगे फिर समय समाप्ति करेंगे। यस सर। ओके चलो, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन है डिजाइन FSM to accept design FSM to accept a string if it starts with A and ends with B over summation A comma B. If it starts with A, ends with B over summation A comma B. ध्यान दो पूरा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं तुमको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, एंड वो 2 क्वेश्चन के आंसर अगर आपने दिए तो आपको जो 630 से हो रहा है सब कुछ परफेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, टेंशन मत। डिजाइन FSM to accept the string if it starts with A, ends with B over summation A comma B. चलो सॉल्यूशन, पहले तो इनपुट
तो ए एंड बी है, आउटपुट रहेगा यस एंड नो। अब आएगा स्टेट्स। चलो पहला क्यूएस, क्यूएस इज अ स्टार्ट स्टेट, ठीक है। अब एक्सेप्ट कब करने का है, स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी, तो एक्सेप्ट करो। तो अगर आपके पास इनपुट कोई भी स्ट्रिंग होगा विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो उसका स्टार्ट एंड एंड क्या हो सकता है। तो स्टार्ट एंड एंड के लिए चार पॉसिबिलिटी है, क्यू ए, क्यू ए बी, क्यू बी ए एंड क्यू बी बी। चलो बोलो व्हाट इज क्यू ए। क्यू ए मतलब स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ ए। क्यू ए बी मतलब स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी। क्यू बी ए मतलब स्टार्ट्स विथ बी एंड एंड्स विथ ए। एंड क्यू बी बी मतलब स्टार्ट्स विथ बी एंड एंड्स विथ बी। ओके, चलो स्टेट फंक्शन लिखता हूं। स्टेट फंक्शन इज एस इंटू आई यूज यू एस। इसमें से मेरा एक्सेप्ट कौन सा है, स्टार्ट्स विथ ए एंड्स विथ बी। चलो यहाँ आएगा स्टेट, यहाँ आएगा इनपुट, इनपुट सिर्फ है ए एंड बी। स्टेट इज क्यू एस, देन क्यू ए, क्यू ए बी, क्यू बी ए एंड क्यू बी बी, जिसमें से ये मेरा फाइनल, ठीक है। चलो बोलो अब व्हाट इज क्यूएस। क्यूएस बोलता है आई एम अ स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था। क्या बोलता है क्यूएस, क्यूएस बोलता है आई एम अ स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था, एम्प्टी स्ट्रिंग। ऊपर से कौन आया, ए। अब बोलो इसका स्टार्ट क्या है, अब बोलो इसका स्टार्ट क्या है, ए। तो स्टार्ट ए। एंड क्या है, एंड क्या है बोलो, एंड क्या है बोलो। हाँ ऑब्वियसली अगर एक ही अल्फाबेट है तो वही स्टार्ट एंड वही एंड, तो यहाँ आएगा क्यू ए। चलो क्यूएस बोलता है आई एम स्टार्ट स्टेट, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऊपर से आ गया बी, बोलो स्टार्ट एंड क्या है, बी। स्टार्ट्स विद बी एंड क्यू ए। क्यू ए बोलता है मेरे पास ऑलरेडी ऐसा स्टेट है जो स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद ए है। मतलब क्यू ए सेज दैट मेरे पास ऑलरेडी ऐसा स्ट्रिंग है जिसका स्टार्ट ए एंड, ऊपर से आ गया ए। बोलो क्या हुआ, स्टार्ट ए। क्यू ए बोलता है मेरे पास ऑलरेडी ऐसा स्ट्रिंग है जो स्टार्ट विद ए एंड विद, ऊपर से आ गया बी। बोलो क्या हो गया, स्टार्ट्स विद ए एंड विद। समझ रहा है ना पक्का। क्यू ए बी, क्यू ए बी, क्यू ए बी बोलता है मैं स्टेट हूँ स्टार्ट्स विद ए एंड्स विद बी, मेरे पास ऑलरेडी था, ऊपर से आ गया ए। बोलो क्या हो गया, बोलो स्टार्ट ए एंड बी। क्यू ए बी बोलता है स्टार्ट विद ए एंड विद बी था, ऊपर से आ गया बी। बोलो क्या हुआ, स्टार्ट विद ए एंड विद बी। क्यू बी ए बोलता है स्टार्ट विद बी एंड विद ए था, ऊपर से आ गया ए। बोलो क्या हुआ, स्टार्ट विद बी एंड विद ए। क्यू बी ए बोलता है स्टार्ट विद बी एंड विद ए था, ऊपर से आ गया बी। बोलो क्या हुआ, स्टार्ट विद बी एंड विद बी। क्यू बी बी बोलता है स्टार्ट विद बी एंड विद बी था, ऊपर से आया ए। बोलो क्या हुआ, स्टार्ट विद बी एंड विद बी बी, मतलब स्टार्ट विद बी एंड विद बी था, ऊपर से आया बी। बोलो क्या हुआ, स्टार्ट विद बी एंड विद बी। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे सर तभी तो आप रिमाइंडर ले रहे थे, अभी आप स्टार्ट एंड ले रहे। बेटा मैं कुछ नहीं ले रहा, न्यूमेरिकल में स्टेट कौन से है। जब डिविजिबिलिटी का कंडीशन था तब आपके स्टेट्स थे रिमाइंडर, अब यहाँ स्टेट कौन से है आप देखो तो स्टेट है स्टार्ट एंड एंड, तो मैं स्ट्रिंग का स्टार्ट एंड एंड ले रहा हूँ, राइट। चलो मशीन जब बनेगी तो मशीन बनेगी, बोलो क्यूएस इज माय स्टार्ट स्टेट, देन नेक्स्ट इज क्यू ए, देन क्यू ए बी जो कि फाइनल है डबल सर्कल, देन क्यू बी ए एंड क्यू बी बी। ओके, बोलो क्यूएस पे ए, क्यूएस पे ए क्यू ए, ओके। क्यूएस पे बी इज क्यू बी बी, क्यू ए पे ए इज क्यू ए, क्यू ए पे बी इज क्यू ए बी, क्यू ए बी पे ए इज क्यू ए, क्यू ए बी पे बी इज क्यू ए बी, क्यू बी ए पे ए इज क्यू बी ए, क्यू बी ए पे बी इज क्यू बी बी, क्यू बी बी पे ए इज क्यू बी ए एंड क्यू बी बी पे बी इज क्यू बी बी। ओके, यस
चलो अब एग्जांपल लेके देखते हैं। स्टार्ट स्टेट बोलो ए बी बी ए बी। चलो देखो स्टार्ट विद ए एंड विद बी है क्या? यस है क्या? एक्सेप्ट होना चाहिए ना? यस यस। चलो 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 बोलो पहला क्यूएस अंदर गया ए बाहर बचा बी बी ए बी। चलो बोलो क्यूएस पे ए, बोलो क्यूएस पे ए, क्यूएस क्यू ए ए क्यू ए ए क्यू ए ए। अंदर गया बी बाहर बचा बी ए बी। चलो क्यू डबल ए पे बी, क्यू डबल ए पे बी, डबल ए पे बी क्यू ए बी। ओके क्यू ए बी। उसके बाद बी बाहर बचा ए बी। चलो क्यू ए बी पे बी, क्यू ए बी पे बी इज क्यू ए बी, क्यू ए बी क्यू ए बी। अंदर गया ए बाहर बचा बी। चलो क्यू ए बी पे ए, क्यू ए बी पे ए इज क्यू ए ए, क्यू ए ए। अब अंदर गया बी। चलो क्यू ए पे बी, क्यू ए पे बी इज क्यू ए बी। इज इट क्यू ए बी फाइनल? यस Yes, your input is accepted. Your input starts with A, ends with B. Accept. Okay? अरे समझा? यस पक्का? वो डायग्राम में क्यों हम लोग ने दोनों वेज ऐड किया? अब कैसा है बेटा बता देता हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स है एफएसएम के, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं को डीएफए बनाएंगे। तो अब मेरे को एक एक कैटेगरी कंप्लीट करनी है। अगर वो कैटेगरी आपसे कंप्लीट हो जाएगी मतलब आप दुनिया के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला डिविजिबिलिटी वाला कैटेगरी, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चन लिए, डेसिमल डिविजिबिलिटी, बाइनरी डिविजिबिलिटी। और भी लेने हैं टर्नरी डिविजिबिलिटी, यूनरी डिविजिबिलिटी, मतलब टर्नरी नंबर डिविजिबल बाय 4 5 जो भी है, यूनरी नंबर डिविजिबल बाय 4 5 जो भी है। तो आपको कोई भी नंबर विद बेस n का डिविजिबिलिटी फिनिश। फिर उसके बाद मैंने लिया स्टार्ट और एंड, जो यहाँ दिख रहा है, मतलब स्टार्ट और एंड के क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैं लूंगा इवन ऑड के क्वेश्चन, वो हो जाएंगे। फिर लूंगा एंड्स विद सम सबस्ट्रिंग, हो जाएंगे। उसके बाद लूंगा कंटेन सब सबस्ट्रिंग, वो हो जाएगा। फिर डज नॉट स्टार्ट्स विद, डज नॉट एंड्स विद। सारे पॉसिबल कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद आप डीएफए का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आने दो, कोई भी कैटेगरी का आप 100% सॉल्व कर सकते हैं, गारंटी। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ, आप देखो। सपोज अगर मेरा क्वेश्चन चेंज हुआ, क्वेश्चन अभी फिलहाल देखो क्या है। क्वेश्चन है डिजाइन एफएसएम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद बी ओवर समेशन। तो क्वेश्चन ये है कि स्टार्ट विथ ए एंड ends with b over summation a comma b। अगर इस क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, थोड़ा सा चेंज, अब मुझे कंफर्म पता है जितने लोग बैठे हैं सब आंसर दे पाएंगे। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, चेंज करूंगा, मुझे आंसर दो। अगर मेरा क्वेश्चन है डिजाइन एफएसएम, मेरा क्वेश्चन है डिजाइन एफएसएम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट starts and ends with a different alphabet। क्या बोला मैंने? start and end with a different alphabet। अगर ये मेरा क्वेश्चन है तो क्या चेंज होगा बताओ। start and end with a different alphabet, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ, start and end with a different alphabet over summation a comma b, तो क्या चेंजेस होगा? ए एंड बी भी नहीं आएगा ना? कौन है? ऐश्वर्या सर। ऐश्वर्या। ऋतुज स्टार्ट विद बी एंड एंड विद ए। यस ऋतुज करेक्ट। ऐश्वर्या क्या बोल रही थी आप बेटा? सर ए एंड बी भी नहीं आएगा ना? किसमें नहीं आएगा? बरा सोच बराबर है आपकी, किसमें नहीं आएगा? सर वो टेबल में नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट करना है स्टार्ट एंड एंड विद अ डिफरेंट अल्फाबेट। तो हमेशा ऐसा ही स्ट्रिंग होगा क्या स्टार्ट एंड एंड विद अ डिफरेंट अल्फाबेट? नहीं ना। आपका सोच करेक्ट है बट उसका दूसरा एंगल देखो, आंसर मिल जाएगा आपको। सर तो बी ए भी एक्सेप्ट हो सकता है, बी और बस
करेक्ट ओम, ओम करेक्ट, ऋतुज करेक्ट। आंसर समझा? आंसर समझा सबको? सर। प्रथम समझा? यस सर। क्या आंसर है? जब स्टार्ट एंड एंड विद अ डिफरेंट अल्फाबेट होगा, मतलब एक्सेप्ट कब करने का है? स्टार्ट ए है तो एंड बी होना चाहिए, स्टार्ट बी है तो एंड ए होना चाहिए। इसका मतलब सर आंसर वही रहेगा, सिर्फ फर्क क्या होगा, अभी सिर्फ क्यू ए बी फाइनल है ना, तो उस केस में क्यू बी ए भी फाइनल हो जाएगा सर। पहला क्वेश्चन समझा? दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बदली करता हूं, ध्यान दो, थोड़ा सा ट्विस्ट। क्वेश्चन है डिजाइन एफएसएम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द सेम अल्फाबेट ओवर समेशन ए कॉमा। क्या होगा बोलो? सो ए और बी बी। बस परफेक्ट, पब्लिक स्कॉलर हो गया। क्या होगा सर? न्यूमेरिकल पूरा सेम रहेगा, सिर्फ क्यू ए एंड क्यू बी बी ये फाइनल स्टेट होगा। समझा? मतलब अपन अभी कहां जा रहे हैं? अपन ने पहले स्टार्ट किया ऐसा मशीन विच हैज ओनली सिंगल फाइनल स्टेट, फिर आगे जाके पता चला अरे ऐसा भी मशीन होता है विच हैज मोर देन वन फाइनल स्टेट, मतलब मल्टीपल फाइनल स्टेट। फिर आगे जाके और ऐसा भी जाएंगे कि सर ऐसा भी मशीन पॉसिबल है जिसके पास डेड स्टेट होता है। आगे जाके फिर ऐसा भी पाएंगे सर ऐसा भी मशीन होता है एक नॉन फाइनल बाकी सारे फाइनल। तो अपन ऐसा धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहे हैं। अरे समझा? यस। क्योंकि अल्टीमेटली ये कौन सा मशीन है? ये मशीन बोलता है सिर्फ दो आउटपुट, हाँ या ना। ये मशीन बोलता है आफ्टर स्कैनिंग द कंप्लीट इनपुट, इफ मशीन हॉल्ट एट फाइनल स्टेट your input is accepted, if machine halt at non final state your input is rejected. Confirm? Yes? Any doubt? कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो बोलो, नहीं तो अपन यहाँ समय समाप्ति की घोषणा आज करेंगे। सर ये सब हमें मशीन ये सब बनाते हैं, मतलब इसका यूज किस में आता है? ऐसा कुछ यूज रहता है? करेक्ट बेटा, अपन मशीन नहीं बनाते, अपन बनाते हैं मैथमेटिकल मॉडल ऑफ मशीन। सिंपल एग्जांपल देखो बेटा, अपना ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है नहीं, अपन कंप्यूटर इंजीनियर है, और इंजीनियरिंग लोग हमेशा डिजाइन में इन्वॉल्व रहते हैं। सिंपल एग्जांपल, अपने घर में इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या आपने को लगता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्ट्रूमेंट बनाता है क्या? नहीं बेटा। टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाता क्या? नहीं बेटा। उनका काम क्या है? पीसीबी, मालूम है ना पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसका डिजाइन बनाने का। करेक्ट है? तो डिजाइनिंग में इंजीनियरिंग लगता है। जैसे एग्जांपल, अपने को रोड पे कितने सारे ऑटोमोबाइल्स दिखते, कितनी सारी गाड़ियां दिखती, ऑटोमोबाइल इंजीनियर गाड़ी बनाते हैं क्या? हाँ, उनका काम है इंजन का डिजाइन बना के देने का। अच्छा, घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज जाने तक कितनी सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती, अच्छा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कौन बनाता है? सिविल इंजीनियर बनाता है क्या? हाँ, उनका काम है डिजाइन प्लान रेडी करके देने का। सो एज अ कंप्यूटर इंजीनियर अपन प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो अपना काम क्या है? प्रॉब्लम का मैथमेटिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का। ठीक है? यस? कुछ डाउट? सर अगर विथ ए और बी आता तो? हाँ प्रथम, क्या बोला तू? अगर ए और बी आता, कहाँ बेटा? मतलब इफ इट स्टार्ट्स विथ ए और एंड्स विथ बी, तो ये तो हो गया ना सॉल्व, स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ बी। पहले सॉल्व तो वही किया अपन, स्टार्ट्स विद एंड्स विद बी, फिर अपन ने चेंज किया, स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट अल्फाबेट आता तो ये ए बी और बी ए दोनों फाइनल आते। फिर अपन ने चेंज किया, स्टार्ट और एंड विद सेम अल्फाबेट आता तो ए और बी बी फाइनल आता। ऐसा। ओके ओके, डन? कुछ डाउट? नहीं तो अपन फिर आज का डन। चलो बाय, फिर मिलेंगे। सर जरा फर्स्ट सम दिखाओ ना। ऐश्वर्या फर्स्ट सम। ओके, एक सेकेंड।
यही ऐश्वर्या डेसिमल वाला? हाँ सर। हाँ बोलो, इसमें कुछ डाउट? नहीं सर, नो डाउट। ओके, डायग्राम कैसे बनाया? और रानिया बोलो क्या? वो जो डायग्राम है ना, मशीन डायग्राम, हाँ हाँ हाँ, वो आप एक बार बता दीजिए ना। मशीन डायग्राम बता दूं? ओके ठीक है, चलो मैं सिंपल बता देता हूँ बेटा। अभी बताओ मुझे इधर, ये स्टेट कितने दिख रहे हैं आपके? QS, Q0, Q1, Q2 बराबर। इसमें से देखो, मेरा QS है वो स्टार्ट स्टेट है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरा Q0 जो कि फाइनल है, जो डबल सर्कल, फिर मेरा है Q1 एंड उसके बाद मेरा है Q2। तो जो भी स्टेट है मैंने बना दिए पहले, उसके बाद फिर सिर्फ ट्रांजिशन दिखाना है बेटा। जैसे कि QS पे 0369 आया, कहाँ जाओगे आप? तो देखो QS पे मैं Q0 पे गया, तब जब 0369 आया, उसके बाद QS पे 147 आया तो Q1, तो 147 आया तो इधर बेटा, उसके बाद 258 आया तो Q2, तो 258 आया तो इधर बेटा। ऐसा मैंने पूरा कंप्लीट किया ये टेबल। ओके रानिया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो यस नो आपने किया है, वैसे हाँ ऑपोजिट कब आ सकते हैं? मतलब अभी Q0 को नो लिखा और बाकी इसको यस वगैरह, वो नहीं, कंडीशन। यस नो का मतलब क्या होता है? सिर्फ दो आउटपुट पॉसिबल है, यस एंड नो। हाँ हाँ तो सर, वो यस समझा। कब? हाँ यस कब, यस कब जो आपका फाइनल स्टेट होगा, एंड नो कब? जब आपका नॉन फाइनल स्टेट होगा। अब मुझे बताओ इसमें फाइनल कौन सा है? Q0 है। तो जहां जहां Q0 आएगा मैं यस लिखूंगा। ओके हाँ। अगर आपका फाइनल चेंज हुआ तो यस नो भी चेंज होगा। ओके सर। ऐसा। ओके चलो बेटा फिर बंद कर देते हैं आज। यस चलो देन, बाय, टेक केयर।